Hello, students. Very good morning to all of you. How are you? I hope fine. Okay. So, here in the previous topic, in the previous session, we have seen some concepts, some basic methods of separation like winnowing, sieving, threshing, and everything. Okay. So, here in this today's session, we are going to see our next concept, that is sedimentation and filtration. So, in that before, we have seen how to separate that pebbles, stones, or sands. Okay, from that pebbles and stone, how we have separated that sand by sieving process. Okay, means by with the help of sieve we have separated that. Okay, now here in that activity 4 also, bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate impurities in it. Now the same concept that you have given here means bringing some flour from the home and then have to sieve that flour with the help of that sieve. Okay, and again it is saying that now make a fine powder of the chalk pieces. Now here we are going to see what is the need of that sedimentation, decantation and filtration here. What is the use of that? For that purpose we have to see that one. Okay, so now make a fine powder of chalk pieces and mixed it with the flour. Now what they are saying to you? They are saying to you that take a one is that take that flour, okay, that you have brought from your home, and in another take a fine pieces, or we can say take that chalk and make the fine powder of that chalk. Okay, like that. And now what they are saying to you, whatever, and you have just with the help of that sieve, they are saying again to sieve that all chalk powder. Okay, and again what they are saying to you next, same, they are saying to you whatever that chalk powder is there, this one. Okay, and whatever that wheat flour is there, just try to mix that with each other, like that it will become, no, this is suppose the wheat flour and suppose this is the chalk flour. Okay, like that we will say, suppose this is the chalk flour. Okay, means fine powder of the chalk. Now they all are mixed. Now here I have indicated it by different colors so you can easily find out them, but in our daily life if we mixed it with each other, you will not easily find out whether they are this chalk pieces, means chalk powder, or it is a flour. Okay, means wheat flour. What they are saying to you, just bring the wheat flour or any flour from the home and then also make the fine powder of the chalk pieces also. So here what will you find out, if you make that if you sieve that all two powders within each other, and if you mixed them within the one flour like that, okay, within one pot, if you mixed that both within with each other, they are saying to you sieving is used when components of a mixture have a different sizes. So they are asking you the questions that can we separate the flour and the powder chalk by sieving. Now here that is the most important questions, that whatever that powder that you have mixed here, whatever that powder is there, are you going to separate that powder by with the help of that sieve or not? Okay, so now it is the one biggest questions, means sieving is used when the components of a mixture have a different sizes. Okay, means when we can use that, when the components, means sieving is used when the components of a mixture have a different sizes, means the components if they really have a different sizes, means like suppose this one is smaller and this one is the biggest, then only we can separate it, like suppose tea leaves or this one, that process, no, we have separated that husk from that floor. Here also these are the biggest stone like pebbles and stones. Okay, and we have separated that stand from the pebbles, so which was different in sizes. Okay, here also they are different in sizes and here also. But what about the things when they are same in the sizes? Okay, having a same size like that, no, chalk powder and flour, means wheat flour, when they have a same size, same color sometimes. Okay, or maybe different color, but having the same size, means very fine size, we can say, like the this flour. Okay, like that flour. So at that time what we have to use, we have to use that next process, that is sedimentation, decantation and filtration. Okay, for that purpose we are today going to see that next process. So here in that sedimentation, what you find, sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जो
विनोइंग की मेथड है, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था विनोइंग कैसे करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ईयर वी जस्ट फाइंड आउट और थ्रो अवे दैट हस्क और heavier particle or smaller particle, lighter particle from that particular grains. Okay, hand picking is also same, मीन्स वी आर सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्हीट और राइस। सो जहाँ तक हमने देखा था विनोइंग और हैंड पिकिंग में, ये दोनों भी मेथड हमने सेपरेशन के लिए देखे थे, ठीक है। बट हमेशा यही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए, ये तो ज़रूरी नहीं ना, क्योंकि जैसे कि ऐसे फाइन पार्टिकल्स होंगे, यहाँ हम हैंड पिकिंग से निकाल नहीं सकते। जैसे कि चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर है, एक दूसरे में ये मिक्स हो गए हैं, यहाँ से हम हाथ से उसको नहीं निकाल सकते कि ये चॉक पाउडर है और ये व्हीट फ्लोर है, ठीक है। या फिर विनोइंग करके इसको एयर में लेके जाएंगे तो ये सारे ही उड़ जाएंगे, हमारे जो फ्लोर है वो सारा उड़ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। इसलिए विनोइंग और हैंड पिकिंग ये दोनों भी मेथड हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसलिए बोला जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल देर मे बी अ लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक अ डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। जहाँ तक कि हमको पता है कि जो राइस और पल्सेस हमारे पास होते हैं उसमें बहुत सारे लाइटर पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि स्टोन होते हैं, ये हेवियर पार्टिकल है, ठीक है। पर हेवियर पार्टिकल तो है, पर इसमें स्मॉलर ऐसे हस्क जिसको बोलते हैं या फिर डस्ट जिसको बोलते हैं हम, ऐसे भी पार्टिकल्स उस राइस या फिर पल्सेस में रहते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। So how are such impurities separated from the rice pulses before cooking? फिर कुकिंग से पहले हम जो ऐसी इम्प्योरिटीज़ है जो हमारी राइस या पल्सेस में ऐड हो चुके हैं उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे या फिर कैसे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे है कि राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जैसे कि हमें पता है जनरली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास राइस है या फिर पल्सेस है उसको हम क्या करते हैं बिफोर हम कुकिंग, मतलब खाना पकाने से पहले सारी चीज़ों का हम धो लेते हैं। जैसे कि सब्ज़ी भी है, वेजिटेबल्स भी है हमारे पास, और उसके साथ हमारे पास पल्सेस भी हैं, और उसके साथ हमारे पास राइस भी है, वीट भी है और एवरीथिंग है, ठीक है। जो कुछ हमने अभी तक देखा था वो सारा हमारे पास है। उसको पहले कुकिंग से पहले हम इन सब चीज़ों को, जैसे कि राइस है या फिर पल्सेस है, इसको हम देखते हैं एक बार और फिर धो लेते हैं और उसके बाद ही हम कुकर लगाते हैं। आपकी मम्मी जब कुकर लगाती होंगी तब आप देखते हो कि राइस और पल्सेस वो धोकर ही कुकर में लगाती है, ठीक है। समझ में आया? तो इसको हम क्यों धोते हैं, दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट, वाई वी वॉश दैट राइस एंड पल्सेस। सो इन दैट राइस एंड pulses you find that many times you have separated that stones from that rice, and also you have separated the some stones from pulses also. But sometimes if you find that there are small like a dust, that in that rice there are, sometimes you find that in rice there is some dust, okay, in pulses also you find there is some dust. So for that purpose what you have to know means, when you find that there is some dust in that particular rice, in that particular pulses etc., then usually we washed that all before we cook, okay. So when you add water to them, impurities like dust particles and etc. will get separate. Here they all will get separate when they all will get separate when you wash them, okay. When you wash them, it will automatically get separate. Now these impurities goes into water, and where that impurities goes, then whatever that water that we are, means suppose these are the rice, okay, and when we are adding water in that rice, automatically what will happen, that all will get clean by that water, that rice will get clean by water, and automatically that heavier particle will settle down. Heavier particle means rice will settle down at the bottom, and then water will come outside, and in that water that dust should be also present, the dust will also present, and when we'll remove that all water, dust will automatically will remove with the help of that water from that particular rice, okay. Means that dust is nothing but the impurities. Now these impurities will go into the water automatically when we wash that particular rice. So understood that one? Okay, very good. Now what will sink to the bottom of the vessel. अब बॉटम के जो भी हम वेसल ले रहे हैं इसके बॉटम में क्या रहेगा, राइस और डस्ट, जो भी हमने अभी तक देखा कि मैंने अभी कहा आपको, राइस विल सेटल डाउन एट द बॉटम, एंड देन वाटर एंड डस्ट विल रिमूव फ्रॉम, whatever the dust will be there from that rice will be removed away from that with the help of that particular water. So they are saying, why have you seen that the vessels is tiled to pour out
द डर्टी वाटर, आपने कभी देखा है कि तो जो वेसल्स है उसमें से डर्टी वाटर बाहर जा रहा है, हम डालते टाइम तो क्लीन वाटर डाल रहे हैं ना, इसमें डालते टाइम हमने क्लीन वाटर डाला है इसमें, जब उसको उस राइस को हमें धोना था या फिर क्लीन करना था तब। पर जब हम इस वाटर को सेम वापस निकाल रहे हैं धोने के बाद, तो यहाँ पे हमें इम्प्योर वाटर मिल रहा है। प्योर वाटर से हमें क्या मिल रहा है? इम्प्योर वाटर। क्यों मिल रहा है इम्प्योर वाटर? क्योंकि इसमें जो डस्ट था वो उस प्योर वाटर में ऐड हो गया, इसलिए। ठीक है, सो here when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। और उसी प्रोसेस को जहाँ पे हमने देखा था कि इस राइस में हमने अगर वाटर डाला है तो उसमें जो डस्ट था वो मतलब अपर साइड में आज वेसल्स के टॉप फ्लोर पे आ जाएगा, और जो हेवियर पार्टिकल्स है जैसे कि हमारा राइस था दैट राइस विल सेटल डाउन एट द बॉटम, एंड दिस इम्प्योरिटी or we can say that impurities or dust, okay, will come above the vessels. So that is nothing but where means when we can say heavier component in the mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। और इसी प्रोसेस को जहाँ पे हमने देखा था कि वो उसमें वाटर ऐड करने के बाद जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो वाटर के साथ बाहर चली जाती है, और जो हमारे हेवियर पार्टिकल्स है जैसे कि इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है हमारे, जो राइस हमने डस्ट रिमूव करने के लिए लिए थे, वो राइस क्या होंगे इस वेसल्स के बॉटम में से सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? yes, that process we will know it as a or called it as a sedimentation। so guys, have you clear with that sedimentation process? okay, now see, opposite to sedimentations or related to sedimentations there is a decantation, another process। so what is decantation? when the water along with the dust is removed, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। और वही चीज़ आप वापस लो कि यहाँ पे वही राइस है, हमने वाटर डाला इसमें, ये राइस सेटल डाउन हो गया बॉटम में। ठीक है, और ये जो वाटर है उस वाटर में इस राइस में जो डस्ट था वो मिक्स होके वो बाहर जा रहा है। जो सेटल डाउन हो रहे हैं उसको तो हमने सेडिमेंटेशन कहा, पर ये जो वाटर है इम्प्योर वाटर है वो जो बाहर निकल रहा है उस वाटर के साथ जो डस्ट है वो बाहर निकल रहा है, उस डस्ट को या फिर उस जो भी पार्टिकल्स इन्होंने यहाँ पे कर अलॉन्ग मीन्स व्हेन वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज़ रिमूव्ड, जो भी वाटर है वो डस्ट के साथ यहाँ पे वो जो रिमूव हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को डीकेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को डीकेंटेशन। ओके, मतलब जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल डाउन हो रहे हैं बॉटम में इसको हमने सेडिमेंटेशन कहा है, और जो भी पार्टिकल्स जो वाटर के साथ डस्ट पार्टिकल्स है जो वाटर के साथ रिमूव हो रहे हैं उसको हमने डीकेंटेशन कहा है। सो दिस वन ऑल्सो आई थिंक यू गॉट क्लियर विद दिस वन। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे फिगर है 5.8, मैंने यहाँ पे अभी फिगर भी निकाल के बोली थी आपको, और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉइल और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, सॉइल और वाटर का मिक्सचर है। अगर इस सॉइल का मतलब हमने सॉइल में अगर वाटर मिक्स कर दिया तो जो हेवियर पार्टिकल्स रहेंगे उस सॉइल में वो सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम। ओके, मीन्स सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। और इस सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यूज़ क्या है कि हम जो हमारे बॉटम में जो हेवियर पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें सेडिमेंटेशन सीखने को मिल रहा है यहाँ से, और जो भी पार्टिकल्स है यहाँ पे जो अपर साइड में है यहाँ पे आप देख सकते हो जो विद द हेल्प ऑफ वाटर्स दैट विल कम आउटसाइड और that will come to the floor of that vessels, means top floor of the vessels, so that all will now if we make that, अगर हमने उस ग्लास को ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो उसमें से हमने प्योर मतलब जो भी ये अपर वाला वाटर था डस्ट वाटर वो हमने एक दूसरे ग्लास में निकाल के रख दिया। ठीक है, मीन्स डिजॉल्व मटेरियल सॉइल जो जिसमें हमने सॉइल मिक्स किया था उस वाटर में। तो ठीक है, मतलब एक ग्लास में हमें सॉइल मिलेगा और एक ग्लास में जो ऊपर वाला हमने जो वाटर है डस्ट के साथ मिक्स हुआ वाला तो वाटर वो हमने दूसरे ग्लास में ऐड कर दिया। मतलब इसी तरह से हमें एक तरफ से हमको सेडिमेंटेशन सीखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ से हमको डिकेंटेशन भी सीखने को मिल रहा है। ठीक है, so that next important thing is that let us consider a mixture of a solid and liquid। अगर हमने एक कंसिडर किया मिक्सचर, जैसे कि कोई भी कंसिडर करो, तो इससे पहले हमने ठीक है ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई फिगर 5.8। ओके, वेरी गुड। नाउ यहाँ से देखो हमने सेडिमेंटेशन कंप्लीट कर लिया और डिकेंटेशन भी कंप्लीट कर लिया दोनों भी। सो लेट अस फाइंड
So let us find few other mixtures that can be separated through sedimentations and decantation. ऐसे और भी एग्जाम्पल है कि आप उससे मतलब सेडिमेंटेशन का और डिकेंटेशन का यूज़ करके उस मिक्सचर को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, उस मिक्सचर को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। किसका यूज़ करके, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करके, इस दो प्रोसेस का। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। जैसे कि ऐसे कोई चीज़ें है, ऐसी कोई मिक्सचर है जो कि कभी एक दूसरे में मिक्स ही नहीं होता, फिर भी हम उसको एक दूसरे में से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए भी यही सेम प्रिंसिपल है, डिकेंटेशन। सेम प्रिंसिपल मतलब यही इस प्रोसेस है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की। तो कैसे, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर है, जैसे कि हमें पता है ऑयल एंड वाटर है। ठीक है, ऑयल एंड वाटर है तो हमें नॉर्मली ये बात पता है कि जब हमारे पास एक वेसल्स है, उसमें हमने पहले तो वाटर डाला है, ठीक है, और फिर बाद में ऑयल डाला है। तो जो वाटर और ऑयल है जो हमने मिक्स किया है एक दूसरे में, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी हम वाटर को या फिर ऑयल को एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वाटर और ऑयल का सेपरेशन यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि वो ऑयल क्या होगा, लाइटर है तो वो ऊपर आ जाएगा, और वाटर उससे थोड़ा हेवियर है तो वो उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो हियर फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम so we can separate that oil and water from their mixture can be separated by this process. If the mixture of such a liquids is allowed to stand for some times, they form two separate layers. अगर हमने गलती से हमारे हाथों से अगर ऑयल या वाटर में ऑयल मिक्स हो गया है, ठीक है, ऐसे वाटर है, इसमें हमने ऑयल मिक्स किया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमें फिल्ट्रेशन या फिर सेडिमेंटेशन इस कौन से भी मतलब चीज़ की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो जो मिक्सचर है जहाँ पे आपने मतलब वाटर और आपका जो ऑयल है वो मिक्स किया है, तो उसको थोड़ी देर के लिए फॉर 5 मिनट्स कीप इट एज इट इज़। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही रखो। आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, अपर साइड में आपके जो भी वेसल्स आपने ली हैं, ठीक है, जैसे कि ये वेसल्स है, यहाँ पे बॉटम में आपको ऑटोमेटिकली वाटर मिलेगा और ऊपर आपको ऑटोमेटिकली ऑयल मिलेगा। मतलब यहीं पे उन्होंने कहा है कि इफ़ द मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स, अगर थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही रख दोगे वो मिक्सचर हुए वाले सब्सटेंस को आप, देन दे फॉर्म 2 सेपरेट लेयर्स। ऑटोमेटिकली ऐसे 2 लेयर फॉर्म हो गए। ठीक है, बिलो एक लेयर होगा और अपर एक लेयर होगा, जैसे कि यहाँ पे एक लेयर है और बिलो एक लेयर है उसके। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म्स टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। और उसके बाद में जो ऑयल जो भी लेयर ऑयल है या फिर वाटर है जो भी अपर साइड में आएगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप डिकेंटेशन का यूज़ करके, डिकेंटेशन मतलब क्या, ऐसा इस ग्लास को आप देख सकते हो, अपर वाला पार्ट नीचे डाल देना है। नीचे डाल देना मतलब अगर ये ऑयल यूज़फुल है तो इसलिए हम अनदर ग्लास ले रहे हैं यहाँ पे, और उसमें का जो ऑयल है वो इसमें डाल रहे हैं और वाटर ऑलरेडी इस ग्लास में प्रेजेंट रह रहा है। मतलब दोनों तरफ से हम आपके जो 2 यूज़फुल सब्सटेंसेज जैसे कि ऑयल और वाटर, ये दोनों को भी हम सेव कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस डिकेंटेशन। एंड इफ़ it is like some mixture which is or substance which do not mix with each other, for that purpose also we are just finding them. Okay, so have you clear with that one? Okay, so let us again consider a mixture of solid and liquid after preparing tea. What do you do to remove the tea leaves? अगर वही उन्होंने बाद में आपको ये कहा है कि अगर चाय है, ठीक है, आप कंसिडर करो कि मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, जैसे कि सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर कोई भी आप ले लो, ठीक है, कौन सा, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, आप चाय बनाते हो, चाय बनाने के बाद व्हाट डू यू डू टू रिमूव टी लीव्स, आप टी लीव्स उसमें से जो अगर चाय है, ठीक है, ये कप है आपका, तो इस कप में आपको चाय छाननी है, तो आप क्या करोगे, एक छाननी का मतलब स्ट्रेनर का यूज़ करोगे, छन्नी उसको बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, तो उसका यूज़ करके ही आप टी क्या करोगे यहाँ से, मतलब ऑटोमेटिकली अगर ये स्ट्रेनर में या फिर या इस कंटेनर में अगर टी है तो उस टी को आप इस कप में डाल सकते हो, मतलब क्लियरली किसका यूज़ करके, ये स्ट्रेनर का यूज़ करके, क्योंकि ये स्ट्रेनर इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे टी लीव्स है और उस टी लीव्स को हमको सेपरेट करना है टी से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यूजुअली वी यूज़ स्ट्रेनर, जनरली हमें मालूम है कि हम स्ट्रेनर से ही यूज़ करते हैं। ये जो स्ट्रेनर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेनर से ही हम टी लीव्स को सेपरेट करते हैं। ट्राई डिकेंटेशन, बट उन्होंने कहा है कि आप डिकेंटेशन की यूज़ करके, वो प्रोसेस की यूज़ करके देखो कि आपको रियली रिजल्ट मिलता है क्या स्ट्रेनर जैसा या फिर नहीं मिलता। हमें ट्राई करने में क्या जाएगा, हम ट्राई करते हैं। ठीक है,
आप भी ट्राई करो, आपके घर में जनरली आप टी बनाते हो तो एक बार डिकेंटेशन का ट्राई करो। डिकेंटेशन मतलब क्या, आपको ये जो चाय की जो कंटेनर है उसको मतलब जो टी लीव्स है या फिर आपकी जो पत्ती है वो नीचे सेटल डाउन होने तक थोड़ी देर रुकना है, और फिर ये जो आपकी वाटर है या फिर क्लियर टी है उसको आप ट्राई करो एक दूसरे ग्लास में, वो पोर होती है क्या अच्छे से, जैसे कि इस तरह से। सपोज़ ये टी है हमारी और यहाँ पे टी लीव सेटल डाउन हो गए, सपोज़ हम ऐसे सपोज़ करेंगे, और टीज़ यहाँ पे जो टी है वहाँ पे इस दूसरे ग्लास में या फिर कप में हम जिसमें हम देते हैं चाय उसमें डाल के देखेंगे, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो। इट हेल्प्स अ लिटिल। अब अगर हम डिकेंटेशन ट्राई करेंगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएंगी हमारी, बट डू यू स्टिल गेट a few leaves in your tea. Now pour the tea through a स्ट्रेनर। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि अगर डिकेंटेशन का भी यूज़ करके आप अगर देखोगे टी के लिए तो आपको परफेक्टली स्ट्रेनर जैसे मतलब टी नहीं मिलेगी। जैसे हम स्ट्रेनर का यूज़ करके टी को कैसे सेपरेट करते हैं, टी लीव्स से, मतलब टी लीव्स को टी से कैसे सेपरेट करते हैं, वैसा रिजल्ट हमें डिकेंटेशन से नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। आप करके देखो, थोड़ी तो भी डिकेंटेशन अगर करके देखोगे तो थोड़ी बहुत टी लीव्स आपके उस टी में भी आ जाएंगी, ठीक है। सो उन्होंने क्या कहा है कि फिर क्या करो आप, मीन्स पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। आप स्ट्रेनर से यूज़ करके देखो। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। अभी यहाँ पे आपको ही क्वेश्चन पूछा है कि हाँ, जो पूरी जो है टी या फिर टी लीव्स है आपकी, ठीक है, तो वो टी लीव्स पूरी उस स्ट्रेनर में आ जाती है क्या, मतलब क्लियर टी मिलती है क्या आपको यहाँ पे, मतलब टी लीव्स यहाँ पे सेटल डाउन होने के बाद स्ट्रेनर में बाद में जो क्लियर टी है वही मिलती है क्या आपको, या फिर स्टिल देयर इज एनी अदर इम्प्योरिटीज और टी लीव्स कंटेन इन दैट इवन बाय यूजिंग द स्ट्रेनर्स ऑल्सो। ओके, सो देखो यहाँ पे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और इसी प्रोसेस को हम स्ट्रेनर का यूज़ करके जो हम सेपरेट करते हैं टी को टी लीव्स से, या फिर कौन से भी पार्टिकल्स को, हेवियर पार्टिकल्स को लिक्विड, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल्स से हम सेपरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन। कौन सी प्रोसेस कहेंगे, यस वी विल नो इट एज अ फिल्ट्रेशन। ओके, सो 5.1 में आप देख सकते हो फिगर में, यहाँ पे बिलो है नेक्स्ट पेज में। सो विच मेथड ऑफ द सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड इज़ बेटर। तो कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी रहेंगी, डिकेंटेशन रहेंगी या फिर फिल्ट्रेशन रहेगी। ऑब्वियसली मुझे तो लगता है फिल्ट्रेशन रहेगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन से ही हम अपनी टी एक परफेक्टली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं टी लीव्स से, ठीक है। नाउ so see here next one, let us now consider an example of a water that we use to all of us all the time get a safe water to drink। जैसे कि अभी देखो आप, हमें अगर वाटर का कंसिडर किया एग्जाम्पल, तो हमें अब तक क्या प्योर ही वाटर मिल रहा था, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना आपके जब टैप वाटर आता है तब उसमें पूरा ही प्योर वाटर नहीं मिलता, कभी कभी हमको मडी भी वाटर आता है। जैसे कि हमने क्रिटिकल सिचुएशन में देखा है, जब हमारे पास वाटर की मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ lacking, means water was lacking for tap water, so means for 1 month there will be the duration of tap water coming। so during that what happened, sometimes we have suffered with the muddy water also। हमें क्या मिल रहा था, कभी कभी muddy water भी मिल रहा था या फिर impure water भी मिल रहा था, पर हम तब उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योर वाटर के टाइम पे समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रूइंग टैप्स में बी मडी, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो कि पॉन्ड्स है या फिर रिवर्स है, जितने भी नदी नाले हैं, वहाँ से अगर हमने वाटर कलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली वो वाटर मडी होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मतलब ज़्यादा मड रहता है तो मडी ही वाटर होगा वो, स्पेशली आफ्टर रेन्स। जनरली रेन्स के बाद ज़्यादातर जो मड है जो सेटल डाउन हुआ था डाउन में, ठीक है, वो रिवर्स के जो बॉटम फ्लोर है उसमें जो मड था वो सेटल डाउन होता, तो रेन की वजह से वो पूरा मड क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी रिमूव्ड। ओके, सो लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज सम मेथड्स ऑफ सेपरेशंस टू रिमूव इनसॉल्युबल impurities like a soil from the water। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like a soil from the water। अगर हमें यहाँ पे देखना है कि हम सॉइल जैसे पार्टिकल्स को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं क्या,
ठीक है, जो कि इनसोल्यूबल है, और ऑब्वियसली इट इज़ इनसोल्यूबल है तो सेपरेट कर सकते हैं, फिर भी देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया एक्टिविटी 4 तक। सो एक्टिविटी 5 इज़ ऑल्सो ईजी, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, in the next day. So for that today we have to remember that two terms very, that is sedimentation and decantation. Okay my dear students, now for today you have to remember that all concepts, and then write down all these concepts and processes, and then send me after completion. Okay, so thank you, have a nice day.